claimed vindication of their Astha shackled for the last 350 years in Varanasi. The district court in its interim order has decided to share 1,500 photographs and 10 hours of videography done by the court-appointed commissioners with both sides. A week's time has been granted to both the sides to file their objections, if any, to the survey that has been conducted. The court also decided that the first plea it will take up on the 26th of May is the Muslim side's plea on the maintainability of the plea that has been made for daily worship at the Gyanvapi. Times Now has accessed the interim order by the district judge. This is what it says about the survey, which claims there is a shivling-like structure in the Wuzu Khana. In fact, the Gyanvapi survey has not been stayed. They're also saying that detail of the survey will be given to both the sides, and 7 days have been given to both sides to file their objections, if any. After this order, the Hindu side has claimed vindication of their faith. मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए। कोर्ट ने उस पे भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दे। हम लोग को ये उम्मीद बच गया है कि जल्दी सुनवाई होगी तो जल्दी हम लोग को न्याय भी मिलेगा। और जो हम मजाक उड़ाया जा रहे हैं हमारे महादेव जी का, जो हमारे बाबा जी निकले उनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह मजाक न उड़ाए। हम लोगों ने ये कहा कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो कि जांच कमीशन के दौरान की गई है, हम उसे चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि आप पैसा शुल्क दीजिए और उसे ले लीजिए। हम बहुत खुश हैं, हिंदू पक्ष खुश है, मंदिर समर्थक खुश है। कब से शुरू होगी ये सारी? 26 तारीख शुरू होगी। और हमें तो अच्छा लगता है, हर बात को उन्होंने सहजता से हम स्वीकार करते हैं। जो भी उनका आदेश हो उसको प्राप्त करके हम प्रसन्न रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हमारे लिए, बल्कि हम तो चाह रहे हैं कि महादेव की नगरी में वर्शिप एक्ट भस्म हो जाए। Now remember, just last week the Muslim side had contended that the survey is not legal since it is barred by the Places of Worship Act 1991. The apex court had crushed these objections, saying survey to a certain character may not fall foul of the Worship Act. Ascertainment of religious character may not be barred. Now a fresh plea has been put in the court in Varanasi. A hearing on that is going to happen at noon tomorrow, and their prayer is very, very simple, that they should be given right to pray. But the very interesting thing that has emerged is a gazette order from the Uttar Pradesh government in the 1960s, when the chief minister was Sucheta Kriplani, and the gazette order says very, very clearly, and let me take this across to our guest, Tuhin Sinha, spokesperson of the BJP, joining us along with Ashutosh Dubey, advocate Syed Masoodul Hasan, former vice president of AMU Students Union. Syed Masoodul Hasan, even the Congress Gazette says in the 1960s that where the Gyanvapi mosque stands today was a mandir. मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये तो कांग्रेस की सरकार ने कहा। कांग्रेस की सरकार ने तो बाबरी मस्जिद के दरवाजे भी खोले थे। कांग्रेस की जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी तब भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। टीवी नरसिम्हा राव जो थे वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो कांग्रेस is a second phase of BJP, or rather I call it a second phase of RSS. Okay. What about the Varanasi district court? Because the district court also hasn't stayed the survey. And tomorrow it's going to hear whether there should be any permission for worship being given. Is that also second phase of BJP? The Varanasi court verdict or judgment is not the last. Okay. And we have much higher courts to appeal. We will move to High Court and to the Supreme Court up till we will get this judgment. Okay, so this is not the last court of appeal to Sinha, and plus if the Congress has said in the 1960s that yes, a temple stood there, so what? Congress, BJP, same. Padmaja, in all the court hearings and the court orders in the last week or 10 days, there is an increasing vindication of Hindu Astha, which is based upon the sacrosanct truth that in any case, the worship was allowed at that place till 1991. And that is why I hold Mulayam Singh Yadav as guilty as for his act of 1991 of denying the worship to the Hindus, as Aurangzeb was in 1669. It is a fact that all of those people who have gone into selective amnesia and who pretend that an idol did not exist, the idol of that shivling did not exist over there, they either are pretending to go into amnesia, or they are purposely lying.
But the good part is that in all the court hearings so far, it is very clear that the Places of Worship Act 1991 does not apply over here, number one. And number two, I'm so happy to say that there is an increasing vindication of Hindu Astha in all the court orders. Ashutosh Dubey, there is now a wealth of evidence to show that there was a temple where a mosque stands today. From a gazette order to an affidavit that was filed by the British government to past historians who've written about it. Is there any evidence to back up the claim that is being made by Anjuman Intizamiya that this indeed was and will always be a mosque? देखिए, मैं सीधा बताना चाहूंगा जो 26 तारीख को जिस हिसाब से तारीख रखा गया है, जो सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से जो इन्होंने ग्राउंड दिया है वर्शिप एक्ट का, जो कि बार्ड बाय लॉ है, ये अपने आप में जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस ग्राउंड के तहत इस प्लेंट को डिसमिस करने के लिए रखा गया है, जो कि ये वर्शिप एक्ट ये दिखाना चाहते हैं कि ये रिलीजियस प्लेस कैन नॉट बी कन्वर्ट, रिलीजियस प्लेस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको इस कानून के तहत, इस ग्राउंड के तहत, इस लॉ की बाधा, इस कानून की बाधा है, जबकि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमें कोई बाधा है ही नहीं, क्योंकि हम इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तहत, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हम कोई चेंजेस चाहते ही नहीं, कोई बदलाव चाहते ही नहीं, क्योंकि वहां पहले ही मंदिर था। और जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में कहता है कि कोई भी चेंजेस कर नहीं सकते, हम चेंज चाहते ही नहीं। जैसे चेंज कैसे होता है, मंदिर को मस्जिद बना दो, मस्जिद को गुरुद्वारा बना दो, चर्च को मस्जिद बना दो, लेकिन पहले से जो मंदिर था वहां मंदिर है और वो मंदिर रहेगा। क्योंकि जब ये तो चेंज करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त मस्जिद वहां पर है और वहां पर नमाज हो रही है, वो नमाज बंद करा के वहां पे पूजा स्टार्ट कर दी जाए। इनका कहने का मतलब ये है। आपका ये मतलब है उसे मंदिर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, उस मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब ये हुआ आपकी तरफ से, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि आप नाक आप सीधा नहीं पकड़ रहे, आप हाथ घुमा के यहाँ से ला रहे हैं और ऐसे पकड़ रहे। तो नाक ऐसे पकड़ लो या सीधा पकड़ लो, हाथ में नाक ही आएगी। पर नाक तो अपनी है ना, कोई कैसे भी पकड़े। प्लेसेस ऑफ किसकी है ना? आशुतोष दुबे जी, मैं इनसे सिर्फ एक ही सवाल, हसन जी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, हसन जी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि वो मुझे सिर्फ स्पष्ट रूप में बता दे कि ज्ञानवापी ये संस्कृत वर्ड है कि उर्दू वर्ड है, ज्ञानवापी का मतलब क्या है? ज्ञानवापी हो या अशोका हो या कोई और नाम हो, नाम ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अरे सुन तो लो भाई, बोलते हो गए क्या वकील साहब? सुन भी लो, सुनने का मादा रखो अपने अंदर। बोलिए। नाम से मस्जिद का होना या न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप संस्कृत का नाम नहीं रख सकते या आप फारसी का नाम नहीं रख सकते या अंग्रेजी का नाम नहीं। जस्ट एज एन एग्जांपल, और कोई मॉस्क है ऐसा जिसका संस्कृत में ऐसा नाम है ज्ञानवापी जैसा? भाई इत्तफाक है, बनारस हमारी जो नगरी है वो संस्कृत की भूमि रही है। अरे बनारस संस्कृत की वहाँ की क्यों? इतने प्रयागराज में भी संस्कृत है। हसन जी को ज्ञानवापी से रूबरू कराना चाहूंगा मैं। देश भर में इतनी जगह है जहाँ पे संस्कृत प्रचलित है, वहाँ पे कई मस्जिदें होंगी, कोई और ऐसा नाम है ज्ञानवापी जैसा? को मैं ज्ञानवापी से रूबरू कराना चाहूंगा। आशुतोष दुबे, यस। हाँ, ज्ञानवापी का एक हमारा पौराणिक ग्रंथ है जिसको बोला जाता है स्कंद पुराण, जिसके 34वें अध्याय के 36 से 39 श्लोक में सिर्फ ज्ञानवापी के बारे में ही लिखा गया है। 36वें श्लोक में सीधा कहा गया है, विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है, जो कि वर्तमान स्थिति में वो उत्तर में है, जो कि उनके जो बोलते हैं ना रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप, वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं। और उसमें एक श्लोक भी है, ज्ञानवापी दशार्थ श्री विश्वेश्वर दक्षिणे। कोई बात नहीं, तो वो कह रहे हैं, मसूदुल हसन साहब कह रहे हैं कि उनको भी स्कंद पुराण से प्रेरणा लेकर के मस्जिद का नाम रखने का हक है। कहाँ लिखा है संविधान में कि वो प्रेरित नहीं हो सकते? बिल्कुल, बताए मुझे ये मसूदुल हसन साहब। भाई आप मुझे बताइए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया तो आसपास जितने शिवलिंग थे, प्राचीन और पौराणिक मंदिर थे, उन सबको तोड़ा गया। आज वो शिवलिंग कहाँ किस जगह पे पड़े हैं, कौन से कबाड़ खाने में, ये बता दीजिए।
आज उन मंदिरों का क्या हुआ? हसन जी मुझे बस वो हसन जी बस इतना मुझे बता दिए, कौन से मस्जिद में नंदी जी का मुंह मस्जिद की तरफ रहता है? अरे भाई आप नंदी कौन जी से का मस्जिद? किसी गिरजाघर की तरफ कर दीजिए, उसके बाद गिरजाघर पे कब्जा कर लेना, गुरुद्वारे की तरफ कर दीजिए। वैसे तो आप कहीं भी मस्जिद, वैसे तो आप कहीं भी नमाज अदा कर लीजिए, वो मस्जिद बन जाएगा। वैसे तो आप कहीं भी नमाज अदा कर लीजिए, वो मस्जिद बन जाएगा। हमारे लिए पूरी धरती मस्जिद है, हम कहीं भी नमाज पढ़ेंगे वो मस्जिद होगी। बस यही मैं आपसे सुनना ही चाहता था कि आपने पूरी धरती को मस्जिद बना लिया है। हम भी मस्जिद मान सकते हैं, कोई खास बात नहीं है उसमें। आप भाई आप मंदिर मान रहे हो ना? अच्छा, so just before I bring in Mateen Sharif, leader of the Congress, Masood Hasan साहब, you said a very important thing. You said पूरी धरती अगर मस्जिद है तो फिर ज्ञानवापी क्यों? तब तो धरती में कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल भाई मुझे ये बताइए ना कि ज्ञानवापी के आसपास और भी जो छोटे पुराने मंदिर थे वो कहाँ चलेगा जो बीजेपी ने तोड़े? अरे सर, सिर्फ जो कॉरिडोर को बनाने के नाम पे जो प्राचीन मंदिर तोड़ करके मुझे ये नहीं समझ में आता है। ओके, तो सिन्हा विल रिस्पॉन्ड, देन मतीन शरीफ। यस, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज की तारीख में कुछ लोग क्यों अपना कर्तव्य मानते हैं कि औरंगजेब के काले करतूतों पर पर्दा ढके। अरे स्वीकार करिए, क्लोजर का तरीका है कि आप सच को स्वीकार करिए। The very fact that it is called Gyanvapi confirms that it was constructed based on an act of encroachment slash usurpation. आप जो है जबरदस्ती अतिक्रमण के उस जमीन को उस पावन शिवलिंग को जो ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग था उसका अतिक्रमण करके अगर आप उसके ऊपर मस्जिद बनाते हैं तो आज की तारीख में कम से कम अपोलोजेटिक होकर स्वीकार कीजिए कि हाँ वो गलत हुआ था, बात खत्म हो जाती है। देखिए 40,000 मंदिरें इस देश में गिराई गई थी, हम तो नहीं क्लेम कर सकते 40,000, लेकिन अगर आप सच को स्वीकार कर ले, अगर एक थोड़ा सा अपोलोजेटिक होकर कहें कि हाँ जो 350 साल पहले हुआ था वो गलत था, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते उस सच को। मतीन शरीफ, यहां तक अभी तक आपको दिखा दिया है, ब्रिटिश एफिडेविट दिखा दिया है, ये दिखा दिया है कि खुद कांग्रेस की सरकार ने उत्तर प्रदेश में माना था 1965 में कि ज्ञानवापी को बनाया गया मंदिर को तोड़ के, तो आज उसको बीजेपी का एजेंडा कैसे कह सकते हैं? आपकी खुद की सरकार ने बोला उत्तर प्रदेश में कि यहां तो मंदिर था। देखिए मैडम, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इसके दौर में ये हादसा पेश आया, वो एक इस्लाम के बहुत सख्ती से इस्लाम पर अमल करने वाले बादशाह रह चुके। तो मैं एक हैदराबाद की एक आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि हैदराबाद में एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसे इलाके में आज से 3 साल पहले एक मस्जिद बनाई गई जिसकी जमीन को लेकर कुछ आपसी इख्तिलाफ लोगों में कि जिसकी जमीन थी वो बेचना नहीं चाह रहे थे। 4 लोगों की जमीन थी, उसमें से 3 लोग वो जमीन को मस्जिद के लिए देना चाह रहे थे, 1 लोग नहीं देना चाह रहे थे। तो उस बिना पर कुछ बाद में फिर आपस की बातचीत के बाद वो मस्जिद की जमीन बेच दी गई, वहां पर मस्जिद बनी। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उस मस्जिद में आज भी मैं जाकर नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने में आया, ऐसा मालूम हुआ कि वो जिस जमीन का हकदार था उसकी जमीन पर उसकी जमीन कुछ किराए उससे ली गई। चाहे मेरे को ऐसा पर्सनली तो आपका पर्सनल बिलीफ ये है कि ज्ञानवापी को हिंदुओं को दे देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मुझे बात करने के लिए टाइम दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरा ये ऐसा इस्लाम में ये है कि अगर किसी से जबरदस्ती किसी की जमीन पर मस्जिद बनाई जाए तो उसमें नमाज नहीं होती। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक इस्लाम के बहुत पाबंद बादशाह रह चुके, वो कभी उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती नहीं करते थे कि किसी मंदिर को तोड़कर उसकी जगह नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि उनको ये मालूम था कि उनको इस्लाम में है कि किसी मंदिर में या किसी दूसरी इबादतगाह में नमाज नहीं होती। ये काम बादशाह की तरफ अगर आप, या फिर उल्टा ये हो सकता है कि औरंगजेब ने अगर जानबूझ के तो ये किया है, तो मतीन शरीफ साहब आप इस बात की अगुवाई करें कि आप कहें कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए और हमें वापस दे देनी चाहिए, ये भी हो सकता है। ये औरंगजेब, मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा। अगली लिस्ट में बता दीजिए, पूरी लिस्ट में बता दीजिए कौन कौन। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आशुतोष दुबे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ जी, बोलिए।
हाँ, मैं इनको पूछना चाहूंगा, ठीक है, इस्लाम का पूरा पालन किया के हिसाब से कोई भी नापाक जगह पर मस्जिद बनाई नहीं जा सकती, मस्जिद नमाज पढ़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब औरंगजेब भी हिंदू थे, इसका मतलब उन्होंने खुद से नंदी बनवाई, इसका मतलब उन्होंने खुद से वहां शिवलिंग स्थापित किया। क्या ये सही है? ये कहां से आया? फिर ये प्रमाण कहां से मिल रहे हैं? कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट को ये प्रमाण कहां से दिए? कुछ मर्यादा नहीं, वो तो कोर्ट के दायरे नहीं, तो आपके हिसाब से कोर्ट कमिश्नर ने जो ही रहेगा। कमाल की बात है मसूद हसन साहब कि आप बात करते हैं कि कोर्ट की मर्यादा रखनी चाहिए, पर आपको कितने ही कोर्ट के फैसले गिना देंगे जहां पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और वहां बैठे रहे, डिस्पाइट कोर्ट सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये जो ब्लॉकेड है ये इलीगल ब्लॉकेड है। एनी हाउ, दिस इज एन ऑनगोइंग केस एंड टुमारो ऑल्सो अ फ्रेश पिटिशन इज गोइंग टू बी हर्ड नाउ इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वाराणसी, वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन पुट सेइंग वी वांट टू स्टार्ट प्रेइंग to the shivling which has been found inside the Gyanvapi complex. Times Now will keep you ahead on that. For the time being, thank you very much, gentlemen, for joining me.